Assalamu alaikum. So in this video, we are discussing about that how we can build logout functionality, which we use in our past video. So basically, in our recent video, it is also a kind of catch is present. And what is the catch? I can tell you. And without wasting such kind of time, move to the computer screen and let's see and understand that how the logout functionality will be created. As you can see, this is my VS Code, and in this video we are creating the functionality of logout. If a user log in our application, so we also want to present the functionality and the feature of logout, so the user simply get logout from their application. So how we can build them? Let's see and understand. So first of all, you want to go inside the controller folder and inside the app user.js file, and over here we created three functions, which is the register one, login one, and follow user, which we created in our last video. So now in this video we created the logout function. So मैं पहले बताऊं कि logout की फंक्शनैलिटी बनाना बेहद आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है। अगर तुम्हें ध्यान हो कि जब हमने रजिस्टर और लॉगिन वाली फंक्शनैलिटी बनाई थी तो वहाँ पे एक टोकन जनरेट कराया था। ठीक है, ये जो था ना, एक टोकन जनरेट कराया था, और हम कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ इस टोकन की सहायता से ही हम सिर्फ इस टोकन की सहायता से ही अपने सारे काम को अंजाम देंगे। सिर्फ बात याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ मैं, ये जो हम यहाँ पे रिस्पॉन्स सेंड कर रहे हैं, ठीक है, रेज डॉट स्टेटस डॉट कुकी, और फिर टोकन लिया, उसके अंदर टोकन की वैल्यू आई, और जो भी हमारे पास ऑप्शंस थे जो हमने यहाँ पे डिक्लेयर करे थे, हम यही सब चीज़ों का इस्तेमाल करके अपनी लॉगआउट वाली फंक्शनलिटी को बनाने वाले हैं। तो it's very important that you have the clear concept for the registration and the login functionality. So without wasting a lot of time, we can directly move on for the creation of logout functionality. Let's go. So for that, here I want to create a function which is exported, और जाहिर सी बात है, और यहाँ पे देखो इसने मुझे जो है ना पहले से सजेशन दे दिया। क्यों सजेशन दे दिया? अगर तुम्हें पता हो तो रिसेंटली कोपायलट जो है फ्रीली अवेलेबल हो चुका है। सो आई ऑल्सो हैव द कोपायलट इन माई मोस्ट ऑफ द वर्क. I don't want to use Copilot or any kind of AI tool, but for the correction, for the debugging, which I don't understand that why my code is not running, so I take help from the AI, because if AI exists, so why you do not use AI? It's always a better approach that to use AI for your work. So here we are not using the AI code, we are using our own mind and build logic and creating the logout functionality. Okay. So first of all, we give the name, which is log out, and after that there is a kind of async function. Yeah, cool. बिल्कुल सही बता रही हो मुझे. Rest dot rest नहीं, request dot this one, and after that we create a simple look like this function. Okay, function के बाद always try and catch, try catch, and inside the catch we provide a response with the status code of 500. सो कूल. देखा कितनी जल्दी लिख दिया इसने. यही चीज़ मैं करता बस. तो स्टेटस कोड ओवर है विच इज़ 200. ये पूरा कोड में दे रहे हैं. आई वांट टू रीड दिस कोड कुकी. अगर हमारा टोकन है वो नल हो जाए, और जो हमारे ऑप्शंस पे आएंगे, एक्सपायरी, न्यू डेट, HTTP ओनली, JSON रिस्पॉन्स, लॉग आउट सक्सेसफुली, यकीन जानो ये कोड पूरा सही है, पक्का. ये कोड पूरा सही है. मैं ये करूँगा और ये दस बूम, ये कोड पूरा सही है. आई डोंट वांट टू चेंज अब लिटरली काइंड ऑफ वो है. तो भाई ये आदत लगवाने में बहुत गंदी आदत है. तो देखते हैं क्या रहता है. तो ये हो गया हमारी लॉगआउट की फंक्शनैलिटी. क्या इतनी सी है? हाँ इतनी सी है, बस इतनी सी ही है. यही चीज़ तो है. सो वी कम ऑन आवर राउट्स, and over here we are creating a router for our route dot this. Don't want to worry about it, I will explain the function once again. and यहाँ हमने बना दिया. so लॉगआउट का फंक्शन है,
एक रिक्वेस्ट है, एक रिस्पॉन्स है, और ट्राई कैच हमने ब्लॉक लगा दिया। एंड कैच अगर आएगा तो 500 के स्टेटस को दिखाओ, जो सक्सेस है वो फॉल्स हो जाएगी, और जो मैसेज है वो उस मैसेज हमारे पास आ जाएगा, उसमें पोस्टमैन के टर्मिनल में खुल के आ जाएगा। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, रेज डॉट स्टेटस 200, जो हमने कुकी बनाई थी, जो मैंने बोला था ना पहले रजिस्टर वाले फॉर्म में, जो हमारे पास कुकी के अंदर जो टोकन स्टोर है ना, उसको तुम नल कर दो, खाली कर दो, बस सिंपल सी चीज़ और कुछ नहीं। क्योंकि यूज़र का ऑथेंटिफिकेशन अगर हम देखें, लॉगिन कराना, रजिस्ट्रेशन कराना, तो वो सिर्फ टोकन के बेसिस पे ही रहता है कि हमने टोकन जनरेट कराया, टोकन रिसीव हो गया, और आफ्टर डेट हमारे सारे काम चल रहे हैं। तो हमारे जो कुकी के अंदर टोकन स्टोर था, उस टोकन को नल कर दो, सिंपल एज डैट। और उसके बाद जो हमने एडिशनल ऑप्शन ऊपर दिए थे, वो हमने सिंपली यहाँ पे दे दिए। अगर कुछ हम ऐसे नहीं करना चाहें तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि कॉन्स्ट कॉन्स्ट ऑप्शंस फॉर, अगर तुम कंफ्यूज ना हो तो मैं यहीं पे कुछ इस तरीके से भी कर देता हूँ, जो कि जैसे मैंने पहले करा था, सेम चीज़। इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है कि ये क्या हो रहा है। सो मैं यहाँ पे ऑप्शंस लिख दूंगा, ऑप्शंस, एंड यहाँ पे मैं ये कर दूंगा कुछ इस तरीके से। तो बहुत सिंपल चीज़ है, नथिंग, कोई भी घबराने वाली बात नहीं है। और ये कैसे करा, जैसे मैंने रजिस्ट्रेशन फॉर्मेट में करा था यहाँ पे, तो ऑप्शंस को ले लिया और ऑप्शंस को यहाँ पे पास कर दिया, सिंपल एज दैट। या मैं वहाँ पे भी कर सकता था, जैसे मेरा दिल चाहे वैसे कर लो, ठीक है। तो हमने फंक्शनलिटी बना ली, हमने राउट्स के अपने इसको सेटअप कर दिया, और अब टाइम है टेस्ट करने का। ओके, तो वी गो टू अवर पोस्टमैन। वी हैव द पोस्टमैन। और एक कैच भी था, एक कैच भी बताऊंगा कि क्या है। सबसे पहले तो हमें लॉगिन करना है ना, लोड हो जाओ। ओके, वी आर, सर्वर चल रहा है हमारा। अरे सर्वर ही नहीं चल रहा था, पहले की तरह हम चेक करते, npm and down। ओके, द ओ, क्या हो गया भाई, क्रैश हो गया ये सर्वर हमारा, व्हाई, लेट्स सी व्हाट हैपन ओवर हियर। अच्छा, ओके 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 ओके, डोंट वरी अबाउट दैट कि ये क्या हो गया हमारे पास। हम्म, कोई बात नहीं, इसको अभी सही करता हूँ मैं। सो हमारी ऐप जो है दोबारा से चल चुकी है। कुछ अननेसेसरी एरर्स आ रहे थे, और क्यों आ रहे थे वो भी मैं बताता हूँ। सो पहले हम इसको जो है टेस्ट कर लेते हैं। हमने क्या करा, हमने राउट्स बना लिए थे, और राउट्स के अंदर लॉग आउट को सेट मार दिया था, ठीक है, बढ़िया, ओके, गुड। चलते हैं अपने पोस्टमैन पे। सबसे पहले हम लॉगिन मारेंगे, मतलब लॉगिन मार दिया, ओके, सब कुछ शुरू हो गया, डेटाबेस में हमारे पास चली गई होगी। अब हमें लॉग आउट मारना है। सिंपली हमने लॉग आउट में यही राउट सेट करा था, देख लेते हैं एक बार। लॉग आउट, ओके, सही है। आते हैं सेंड पे, एंड सेंड लॉग आउट सक्सेसफुली, सिंपली हमारा काम हो चुका है। अब जो कैच था, वो कैच बताता हूँ वो क्या था। अब एक उससे पहले ये देखो, यहाँ पे हमारे जो बैकएंड में था, यहाँ पे कंसोल में हमारे पास यूज़र की डिटेल आ चुकी है, क्या पासवर्ड डाला था, क्या उसने वो डाला था, और लॉग आउट के बाद हमारा जो टोकन था उसको हमने नल कर दिया, एंड दैट सिंपल, इजी कूजी। अब जो कैश था ना, उसको देखते हैं। हमने कल क्या चीज़ करी थी, हमने बनाया था फॉलो यूज़र की फंक्शनैलिटी। अब ये इतनी बड़ी फंक्शनैलिटी हमने कल बनाई थी पिछले वीडियो के अंदर, ठीक है। तो इसमें क्या चीज़ हो रही है, हम अपनी एप्लीकेशन के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, और यहाँ पे एक बंदा नहीं है, दो बंदे हैं, पहली बात। दूसरी बात, अगर जब भी हम अपनी एप्लीकेशन के साथ इंटरेक्ट करेंगे, तो क्या होना चाहिए, अगर जब तक यूज़र ऑथेंटिकेट ही नहीं है, तो वो क्या चेंजेस कर सकता है। क्या कोई नया बंदा आ गया जो रजिस्टर्ड ही नहीं है, हमने एक रैंडम जिब्रेस स्ट्रिंग उठा ली और उसको एज आईडी पास कर दी पोस्टमैन के अंदर, ठीक है। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ यहाँ पे दिखाता हूँ तुम्हें क्या कहना चाहता हूँ मैं। एंड इसको खोलता हूँ, एंड यहाँ पे हम यहाँ पे एक आईडी पास कर रहे थे फॉर द यूज़र, जो यूज़र की आईडी थी। अगर हमारे पास ये आईडी हमने एक रैंडम जिब्रेस स्ट्रिंग बना ली और यहाँ पे पास कर दी, तो भी ये काम हो जाएगा। ओ, तो हम
कुछ इस तरीके से सिक्योरिटी लेयर बनाए ना अपनी एप्लीकेशन में कि अगर भाई यूज़र एग्जिस्ट नहीं करता है तो तुम कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। ठीक है, समझ रहे हो ना बात को मेरी? अगर यूज़र एग्जिस्ट नहीं करता है तो तुम किसी भी तरीके की मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते एप्लीकेशन के अंदर। तो इस चीज़ को, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और इस चीज़ को देखना है कि किस तरीके से हम करेंगे इस चीज़ को। ठीक है, और ये दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका एक तो अगर यूज़र एग्जिस्ट करे और दूसरा हमारा टोकन। भाई टोकन तो हर तरफ ही लेके चल रहे हैं, अगर टोकन नहीं है तो जाहिर सी बात यूज़र भी नहीं है। तो अब हम बनाते हैं ये वाली सिक्योरिटी लेयर्स को। ठीक है, और वो कल जो हमारी ये यूज़र फॉलो वाला जो चल गया था हमारा फंक्शन, वो एक कैच की वजह से चल गया था, वो मैं बाद में बताऊंगा क्या होता है। तो अभी जो है एक इसके अंदर बैकएंड के अंदर एक फोल्डर बनाते हैं विच इज़ द मिडिलवेयर। मिडिलवेयर, ओके। तो मिडिलवेयर्स के अंदर हमें क्या करना है? सो मिडिलवेयर्स हम कुछ ये कर लेते हैं मिडिलवेयर्स। सो इसके अंदर हमें एक फोल्डर बनाना है, हम बनाएंगे ऑट डॉट जेएस के नाम से। अभी ऑट डॉट जेएस है क्या भला, अभी बताते हैं क्या भला है। तो यहाँ पे हमारी मिडिलवेयर होता है क्या है कि अगर हम किसी काम को एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं पर हमारे पास सारी नेसेसरी चीज़ें नहीं है, तो ये जो फाइल के अंदर हम कोड लिखेंगे ये कोड हमें रोक देगा हमारा एग्जीक्यूटेबल पार्ट तक पहुँचने के लिए। ये फाइल जो है ये फाइल हमें रोक देगी जहाँ तक हम पहुँचना चाहते हैं। आसान भाषा में बोलूँ तो ये एक ऐसी चीज़ होती है कि अगर फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास टोकन नहीं है तो तुम भाई हमारे एप्लीकेशन को एक्सेस नहीं कर सकते, सिंपल एज क्लियर। तो जो हमने साइड अप और लॉगिन बनाया वो क्या बेकार था? नहीं। पर यहाँ पे हम वेरीफाई करते हैं कि अगर तुम्हारे पास सही में है तो तुम करोगे, वरना नहीं करोगे। ठीक है, तो इस किस तरीके से इसको डिफाइन करेंगे उसको देखते हैं। और ये हमारा कैश था अभी तक का, हमने इस चीज़ को डिफाइन नहीं करा था। तो सबसे पहले तो हमें यूज़र को ही उठा के लाना है। यूज़र को कहाँ से उठा के लाएंगे? तो वो हमें सब कुछ मालूम है कि भाई मॉडल्स में से लेके आ जाएंगे। एंड इसको मैं यू कैपिटल मार देता हूँ। उसके बाद हमें बिल्कुल सही भाई, कोपायलट बहुत अच्छे हैं। हमें ये चाहिए था JWC टोकन एंड ओवर सिंपल हेयर हमें एक इज ऑथेंटिकेट नाम से एक फंक्शन बनाना है। ऑथेंटी स्पेलिंग क्या होती है? चलो स्पेलिंग पे मत जाना, मैं कुछ भी लिख देता हूँ। तो कुछ इस तरीके से, बहुत सही। एंड ओके, कूल, which is over the try catch we block we simply wrote down and ये तो हमें पता है हमें क्या करना होता है यहाँ पे। we simply provide a status code of 500 JSON रिस्पॉन्स के साथ, कुछ इस तरीके से। और बिल्कुल सही। अब यहाँ पे हम पहले लॉजिक समझते हैं। अगर यहाँ पे कर्सर लेके जाएंगे तो दोबारा से हमारा कोपायलट हमें हिंट दे देगा क्या करना है। तो सबसे पहले समझते हैं कि क्या फ्लो रहेगा। फ्लो कुछ इस तरीके से रहेगा कि सबसे पहले हमें टोकन को एक्सेस करना पड़ेगा। ठीक है, टोकन एक्सेसिंग। उसके बाद क्या रहेगा हमारे पास, देखेंगे फिर हम चेक करेंगे कि भाई टोकन जो है हमारे पास है भी या नहीं है। यूज़र के पास जो टोकन है, टोकन इज प्रेजेंट और नॉट, ये कर लेंगे। उसके बाद उस पर्टिकुलर अगर टोकन एग्जिस्ट करता है तो फिर टोकन इज इक्वल टू हम उस पर्टिकुलर टोकन को डिकोड करेंगे। किस तरीके से करेंगे हम बताएंगे उस चीज़ को, यही मैं बता देता हूँ। एक वेरीफाई करके एक फंक्शन होता है हमारे पास, JWT हमें वो प्रोवाइड कराता है, तो उसकी हेल्प से करेंगे। और अगर वो चीज़ मिल जाती है हमें तो फिर हम उस पर्टिकुलर जो भी यूज़र है उसको थमा देंगे, ये लो भाई तुम्हारा काम ये था। एंड डिकोडेड वाले फंक्शन को अ, की हेल्प से हम आईडी को फाइंड कर लेंगे। और आईडी अगर एक बार हमें मिल गई तो ठीक है, काम बन गया। यूज़र एक्सेस करता है हमारे पास, जो ये काम करना चाहता है, ये चीज़ वैलिड है, टोकन वैलिड है, तो उसको एक्सेस दे दो। तो कुछ इस तरीके से हमारा क्या है प्रोसेस रहेगा, जो अभी हम ट्राई के अंदर लिखेंगे। सो चलते हैं और लिखते हैं। तो मैं कुछ, अरे ये क्या आ गया, कॉन्स्ट, मैं कुछ लेना चाहता हूँ, कहाँ से लेना चाहता हूँ?
मैं लेना चाहता हूँ रिक्वेस्ट डॉट कुकीज़। अब कहोगे भाई कुकीज़ क्यों? कुकीज़ इसलिए क्योंकि कुकीज़ के अंदर ही हमने सब चीज़ें स्टोर करनी थी अपना टोकन। तो अब क्या लेना है इसके अंदर से? हमें लेना है टोकन। टोकन ले लिया। आफ्टर दैट सेकंड पॉइंट क्या था? अगर टोकन एग्जिस्ट नहीं करता है तो एक कर दो कि इनवैलिड ऑथेंटिकेशन। बहुत तेज़ है ये, पर मुझे जो है सही है इसका इतना, पर मुझे पूरा कोड में इससे नहीं लूँगा। जहाँ तक मुझे चाहिए मैं वहाँ तक लूँ। तो जेसन मुझे भाई सक्सेस भी तो दिखाना है, मेरी मर्जी। या सक्सेस नहीं दिखा दो या दिखा दो यार। इनवैलिड टोकन की जगह मैं चाहता हूँ कि बोलूँ पहले कि भाई पहले लॉगिन करके आओ। लॉगिन फर्स्ट। लॉगिन फर्स्ट। और उसके बाद तुम्हें एक्सेस मिलेगा। भाई जब वो बंदा लॉगिन करेगा तो जाहिर सी बात है उसके पास टोकन आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर वो लॉगिन करेगा तो, अगर लॉगिन नहीं करेगा तो उसके पास टोकन नहीं आएगा। अब हमारे पास है तो डिकोड कर दे के दिए। ओके सही है, बढ़िया। ठीक है, पर इसके अंदर हमारी एक दो गलती है कि हमें जब देखो जब कोई चीज़ आती है ना तो उसको टाइम लगता है। तो उसको हमें AWAIT अवेट अवेट करना पड़ेगा। वेट करने के बाद ये जो है ये मेरी आई वो नहीं है। तो यहाँ पे मुझे अपना वो डालना पड़ेगा कि कहाँ से मैं चीज़ ले रहा हूँ। तो मेरे पास ये आ गया, मैंने डिकोड कर दिया। डिकोड करने के बाद हमें क्या करना था? यूज़र को फाइंड करना था इस पर्टिकुलर चीज़ से। ठीक है, तो हम यूज़र को जो है फाइंड करते हैं। तो रिक्वेस्ट डॉट यूज़र एंड आफ्टर दैट अवेट यूज़र डॉट फाइंड बाय आईडी डिकोड आईडी सेलेक्ट माइनस पासवर्ड। इट इज़ नॉट टू बी करेक्ट, पूरा नहीं है ये। हम इसको और बहुत छोटे तरीके से लिख सकते हैं। तो यूज़र और बिल्कुल सही है ये तो भाई कि हम फाइंड बाय आईडी कर लेंगे, बाय आईडी। और आईडी करने के बाद जो हमने ये चीज़ ली है भाई, हमने ये चीज़ क्यों ली है? डिकॉर्डेड। ठीक है, डिकॉर्डेड डॉट अंडरस्कोर स्लैश आईडी करके हमारा काम हो जाएगा सिंपल। ये नहीं चाहिए हमें। और नेक्स्ट, अब ये नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट हमारा एक फंक्शन है, तो हम उसको चला देंगे। और आई थिंक तो काम हो चुका है हमारा। इतना ही काम हमें करना था इसके अंदर। तो ये चीज़ हो चुकी है। अब हमें करना है क्या? राउट्स के अंदर आएंगे हम। और अगर हम यहाँ पे कैश था, हम किसी भी चीज़ को एक्सेस करना चाहते हैं ना, तो हमें इस ऑथेंटिकेशन फंक्शन को हमें बुलाना पड़ेगा। इस मैं यहाँ से बुलाता हूँ यार, यहाँ पे तो आ नहीं रहे। ओके, कुछ इस तरीके से कॉपी कर लिया एंड वो है पेस्ट मार दिया। तो पर इससे ही पहले मैं एक चीज़ दिखाता हूँ। अगर मैं ये नहीं करूँ, अगर मैं ये नहीं करूं और यूज़र को दोबारा फॉलो करने की कोशिश करूं, तो क्या हो पाएगा? मेरे पास यही कैश था, यही कैश था। लॉगिन हुआ हुआ है, लॉग आउट तो मार दिया था आई थिंक सो। दोबारा हाँ लॉग आउट मार दिया, तो दोबारा से लॉगिन कर लेते हैं। तो लॉगिन करने के बाद हम आते हैं फॉलो में। तो यहाँ पे आएंगे, देखो कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिफाइंड रीडिंग अंडरस्कोर आईडी। अंडरस्कोर आईडी क्या है हमारे पास? अंडरस्कोर आईडी हमारे पास ये है जो अभी हमने और डॉट जेएस के अंदर इसमें लगाई है, उस पर्टिकुलर बंदे की आईडी। ठीक है, जो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। क्यों? क्योंकि वो ऑथेंटिकेशन के प्रोसेस से गुजरे ही नहीं है। क्योंकि हम यहाँ पे ऑथेंटिकेशन के अंदर क्या चेक कर रहे हैं? टोकन को चेक कर रहे हैं। टोकन एग्जिस्ट करता है तो करो, अगर नहीं करता है तो मत करो। तो सिंपली एज डैट। तो हमें क्या करना है? हमें राउट्स में आना है एंड आफ्टर डैट कुछ इस तरीके से करने के बाद हम इसको इस ऑथेंटिकेट वाला फंक्शन पकड़ा देंगे कि भाई लो जी लो अपनी ज़िंदगी। और अब दोबारा से पोस्टमैन पे आके चेक करेंगे, रिक्वेस्ट मारेंगे, यूज़र फॉलो, सॉरी अनफॉलो हो गया और यूज़र फॉलो। तो ये कैश था हमारी एप्लीकेशन में अभी तक। सो अभी तक हमने जो जो चीज़ें बनाई हैं उसके अंदर हमें ये ऑथेंटिकेशन वाले फंक्शन को ऐड ऑन करना पड़ेगा। अगर हमें कम्प्लीटली एक्सेस चाहिए और फुल्ली हमारे पास सिक्योरिटी रहना चाहिए कि अगर टोकन एग्जिस्ट करता है तभी मतलब यूज़र एग्जिस्ट करता है। तो यूज़र एग्जिस्ट करेगा तभी वो हमारी अपनी एप्लीकेशन में कोई भी मॉडिफिकेशन या चेंजेस कर सकता है। सो बेसिकली तो हमने आज क्या देखा? एक तो आपका लॉग आउट और एक ये आपका ऑथेंटिकेशन वन। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। एंड फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।
और जब तक के लिए अगर सीरीज़ अच्छी लग रही है, सीरीज़ को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, चैनल को शेयर करो अपने दोस्तों के बीच में। और इस चैनल पे बहुत सारी और वीडियोस आएंगी जिसके अंदर लेटेस्ट टेक से रिलेटेड रहेंगी, इंस्टॉलेशन के से रिलेटेड रहेंगी, पूरे पूरे प्रोजेक्ट्स होने वाले हैं। सो इसको अपने जो है ना विश लिस्ट के अंदर डाल लो और प्लेलिस्ट को सेव कर लो और सब्सक्राइब बटन दबा दो। और फिर मिलते हैं कल, और मतलब नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।